Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. Welcome to join this lecture. This is Shahid Raza, Assistant Professor of Education from University of Education, Lahore. My dear students, as you know, that we are discussing about the course Introduction to Guidance and Counseling. In this course is of B.Ed Honors and course code is 3142. My dear students, our today's topic is about cumulative records. As you know, we are discussing techniques of guidance, and in previous lectures we discussed different techniques of guidance. For example, interview as a technique of guidance, questionnaire as a technique of guidance, and there are so many other techniques which may be applied and used by the guide and counselor while providing proper guidance and authentic counseling to his or her clients. So for today, we are going to discuss in detail about another important technique of guidance, which is cumulative records. As you know that guidance and counseling is very much needed for every individual, and especially for students and learners in classroom situation and in any type of educational institute. So it's very necessary and important for teacher to play his role as guide and counselor for providing authentic counseling to his students and learners. So for this purpose, it's also very important for teacher to know about the proper techniques of guidance so that he may be able to provide accurate guidance to his students. जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है और किस तरीके से एक टीचर इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप एक आर्टिकल देख रहे होंगे। इस आर्टिकल को दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये इल्म हो सके कि गाइडेंस और काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल का टाइटल भी द नीड फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ट्रेनिंग फॉर टीचर्स है। So it shows that guidance and counseling training is very much important for teachers. ना कि वो टीचर जो आप पढ़ा रहे हैं, बल्कि वो टीचर्स जो फ्यूचर में टीचर बनने जा रहे हैं, इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो उसको यूज़ करके बेहतरीन काउंसलिंग कर सकें अपने क्लाइंट्स की, और क्लाइंट्स मीन स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आप देख सकते हैं कि स्टडी के जो रिजल्ट हैं उसमें बताया जा रहा है द प्रेजेंट स्टडी फाउंड दैट स्टूडेंट्स हैव वेरियस ट्रेनिंग नीड्स एंड परसीव्ड स्ट्रेंथ एंड इम्पेंडिंग इश्यूज इन रिलेशन टू कैरिंग आउट द गाइडेंस एंड काउंसलिंग रोल एट स्कूल। और इसमें यह बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनको गाइडेंस और काउंसलिंग के हवाले से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि व्हाट रियली इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड? अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज़ अ सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट। एक्चुअली क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज़ अ सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट और इंडिविजुअल। किसी भी स्टूडेंट का एक सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो मालूमात इकट्ठी करना किसी भी इंडिविजुअल की, स्टूडेंट की, आप जान पाएँ कि उस स्टूडेंट की मुकम्मल हिस्ट्री क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्या करता रहा है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसका रिज़ल्ट कैसा रहा, उसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है। So it's a comprehensive record of the achievement or otherwise of each student in different aspects. ये एक comprehensive record है achievement का,
And in this comprehensive record of achievement, the record of physical aspect is also included. His academic excellence or academic performance is included. His moral aspect is included. His social aspect is included. How he perform in society, with peers, with friends, and how he behaves with all the people in different situations. And also the health history is included in this. तो ये एक कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है जिसमें एक स्टूडेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जाता है और उसके बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं ताकि बाद में उसके हवाले से बेहतर डिसीजन मेकिंग की जा सके। तो जब ये डाटा आपके पास आ जाता है, then all the records are maintained from time to time, starting from schooling, when the child starting school till he finishes it. जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लिया था उस वक्त से स्टार्ट करके जब वो लीव करेगा स्कूल को, उस वक्त तक तमाम रिकॉर्ड बच्चे का आप मेंटेन करेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज एक्चुअली टर्म्ड एज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। And the relevant information is collected from different sources over a period of time. और ये एक लंबे अरसे तक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है और आप कलेक्ट करते रहते हैं और डिफरेंट सोर्सेस से लेते हैं ये इंफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जांपल यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल, फ्रॉम हिज अदर टीचर्स हु आर टीचिंग टू हिम, एंड हिज क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, हिज फैमिली मेम्बर्स or other stakeholders to whom the individual belongs. तो इन तमाम सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, डॉक्टर्स से उसकी हेल्थ हिस्ट्री ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से उसके बारे में पूछ सकते हैं, आप टीचर से उसके रिजल्ट के बारे में और उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है, उसकी स्टडी हैबिट्स हैं, उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। So all this information actually you are collecting from different sources over a period of time, and then you have to manage it and to maintain it for future use so you can be able to take a positive and accurate decision related to that particular individual. So what is the need of cumulative record card? Actually ये तमाम information जो आपके पास आ रही है, you are going to save it, आप इसको महफूज कर रहे हैं। इसको महफूज करने के लिए यू हैव टू यूज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। सो द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड ऑफ अ स्टूडेंट इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रीजंस। वो कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके लिए ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप स्टूडेंट का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड मेंटेन करें। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, to give a complete picture of the pupil's all-round progress in different areas, you have to know all-round progress of that particular individual in different areas. That area may be physical, it will be academic, it will be moral and social background, and also the health area. तो इन तमाम डिफरेंट एरियाज से रिलेटेड आप एक ओवरऑल पिक्चर लेते हैं, आप एक ओवरऑल प्रोग्रेस का जायज़ा लेते हैं और उसके हवाले से प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। एंड टू असेस द चाइल्ड, हिज पोटेंशियलिटीज़, हिज इंटरेस्ट्स, हिज एप्टीट्यूड एंड टैलेंट्स। आप उस बच्चे के हवाले से ये मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियलिटीज़ ही हैज़ एंड व्हाट आर हिज इंटरेस्ट्स, उसकी दिलचस्पियाँ क्या हैं। एंड यू आल्सो want to know about his aptitude level. Aptitude futuristic point of view से कहते हैं कि वो बच्चा, उसके पास फ्यूचर के हवाले से, आने वाले वक्त के हवाले से उसकी दिलचस्पियाँ क्या हैं, उसका रुझान क्या है और उसके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो छुपी हुई हैं, जिसको अगर आप सामने लाएं और अगर वो मालूम हो पाएँ तो उसके हवाले से आप बेहतर डिसीजन मेकिंग और प्रॉपर गाइडेंस कर सकें उसकी। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टैलेंट्स ही हैज़, उसके पास किस तरह के टैलेंट हैं, तो वो अपने टैलेंट को बेहतरीन से बेहतरीन कैसे कर सकता है।
and providing proper guidance and counseling, taking into consideration of students' curricular as well as co-curricular achievements. आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड के ऊपर ये भी दर्ज करेंगे कि स्टूडेंट की करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं और उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स क्या हैं. एक बच्चा क्लासरूम सिचुएशन में, एक फॉर्मल सिस्टम में जब वो पढ़ रहा है तो हाउ ही इज़ बिहेविंग, व्हाट आर हिज स्टडी हैबिट्स, व्हाट आर द लर्निंग प्रॉब्लम्स दैट ही इज़ फेसिंग, all these are related to curricular activities. Also you have to mention and to save and maintain his co-curricular achievements and activities. वो co-curricular activities में किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये रिकॉर्ड भी ज़रूरी है कि इसके हवाले से भी आप इसको मेंटेन करें. And helping parents and teachers in the placement of pupil after the completion of schooling or his study. आप इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स और लर्नर्स के पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग्स कर सकते हैं ताकि उनको प्रॉपर गाइड भी किया जा सके और उनसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन ली जा सके रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. So what type of content will be included in cumulative record card? इस cumulative record card को डिज़ाइन करने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए होगा. So what type of content is required for a cumulative record card? जब आप cumulative record card को बना रहे होंगे तो उसमें किस तरह का कंटेंट शामिल करेंगे, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, personal data. So personal data give introductory information about a child like his name, his gender, date of birth, his age, permanent address, parents name and family background. तो जो पर्सनल डाटा है उसमें आप इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी द नेम ऑफ चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड, whether he is male or female, about his date of birth, his age, and the address, and their parents' name and family background. All this is included in personal data while maintaining cumulative record. So then comes academic data. So academic data deals with the information about the previous schools attended earlier. बच्चे ने इससे पहले कहाँ कहाँ तालीम हासिल की है, कौन से स्कूल अटेंड किए हैं. All that type of information is necessary and will be included in cumulative record cards. And the present grade or class, इस मौजूदा वो किस क्लास में है, his roll number, examination appeared, his results, divisions and percentages of marks in each examination, and failures if any. अगर वो कहीं पे फेल हुआ, कहीं पे पास नहीं हो पाया, कोई रिपीट थी उसकी, कहीं पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी उसके साथ किसी भी सब्जेक्ट में, so all that type of information will also be included and added in cumulative record card. His percentages of attendance will also be make part of that cumulative record card. So then comes health data. तो हेल्थ डाटा भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की सेहत के हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर उसको भी इस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड का हिस्सा बनाया जाए. इट रिवील्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर एंड इफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, और उसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं अगर वो प्रोवाइड की गई हैं बच्चे को तो डॉक्टर्स से और उसके पेरेंट्स से ये हिस्ट्री आप लेंगे और उसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे. हिज फूड हैबिट्स, हिज एक्सरसाइज पैटर्न एंड पेरेंटल डिजीज़ इफ़ एनी. अगर कोई उसके पेरेंट्स को कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी लाहक है, तो उसके हवाले से भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस रिकॉर्ड कार्ड का
हिस्सा बनाई जाएगी। एंड केयर टेकन इफ हैंडीकैप एक्स्ट्रा, इफ देयर आर हैंडीकैप पीपल इन द फैमिली, इन द होम, उसके हवाले से भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की ज़रूरत होगी, ताकि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की जा सके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हवाले से रिलेटेड टू हिज फ्यूचर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट co-curricular activities data. The child's participation in different co-curricular activities, leadership qualities, certificates awarded, prizes and medals received are also the part of cumulative record. बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट एरियाज में क्या है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, if there are certificates and awards he has achieved, if any type of prizes and medals he received, all that will be included in cumulative records. So personality characteristics, इंडिविजुअल की, उस स्टूडेंट की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से भी मालूमात ली जाएंगी और उसको भी शामिल किया जाएगा। एक्चुअली दिस रिवील्स द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लाइक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़, टॉलरेंस, इनिशिएटिव एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्सट्रा। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में उस इंडिविजुअल का, उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, there are so many emotions, there are positive emotions and negative emotions. So if there are negative emotions, how he controls or how he behave in that particular situation and how he handle that situation properly. So his emotional state of mind and condition and the information related to that particular emotional state of mind will also be the part of that cumulative record. उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, टॉलरेंस, वो बर्दाश्त कर पाता है कोई भी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा मुश्किल उसके सामने आ जाए, तो उसमें किस तरीके से टॉलरेट करता है, उसका टॉलरेंस लेवल क्या है, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी किस हद तक है, हाउ मच रिस्पॉन्सिबल ही हैज़, और अगर उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हाउ ही फुलफिल्स दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन भी आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड का हिस्सा बनाएंगे। ये हम क्यों बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप मैनेज करेंगे, कलेक्ट करेंगे और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में शामिल करेंगे। वाई इट्स नीडेड, तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर गाइड कर सकें उस इंडिविजुअल को, आप उसकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें। सो फॉर प्रोवाइडिंग अथेंटिक गाइडेंस एंड प्रॉपर काउंसलिंग टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दिस टाइप ऑफ डाटा इज़ वेरी मच नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट। ये आपके सामने होगा तो आप बेहतर तौर पे गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। सो इन टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसमें एक और रिकॉर्ड जो ज़रूरी है, जो आप शामिल करेंगे, दैट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का रिकॉर्ड, द प्रॉब्लम्स फाउंड विद द चाइल्ड, डेट ऑफ इंटरव्यू, रीजन डिस्कवर्ड, remedial measures taken, following programs etc are mentioned in the card. तो बच्चे ने इससे पहले कोई काउंसलिंग सेशन लिए हैं, उसकी प्रॉपर गाइडेंस की गई है या नहीं की गई, और अगर की गई है तो उसकी टेक्निक क्या थी, वो कब इंटरव्यू हुआ था, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या थी, रीजंस क्या डिस्कवर की गई थी, और उसके बाद उसको कौन सी टेक्निक्स बताई गई थी और वो कौन सी सजेशंस दी गई थी कि जो उस मसले के हल के लिए डिस्कस की गई थी। सो ऑल दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी द पार्ट ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। सो देन जनरल ओवरऑल रिमार्क्स, जनरल रिमार्क्स बाय द क्लास टीचर and the headmaster or principal on the performance and talents of that particular
स्टूडेंट। ओवरऑल जनरल रिमार्क्स क्या हैं उसके क्लास टीचर के, डिफरेंट टीचर्स के उस बच्चे के हवाले से, उसका जो हेड है, जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उसके क्या रिमार्क्स हैं उस बच्चे के हवाले से, उसकी परफॉर्मेंस और टैलेंट्स के हवाले से, ये भी सारी इंफॉर्मेशन उनसे लेकर इसको भी उस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। सो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड? वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि ज़रूरी हैं कि एज ए टीचर और गाइड आपके जहन में होने चाहिए ताकि आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर पाएं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। द टीचर शुड बी इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स एंड शुड मेक द एंट्रीज अप टू डेट। टीचर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए उनकी तमाम इंफॉर्मेशन जो उनके पास आ रही है, वो तमाम एंट्रीज जो वो उसमें लिख रहे हैं, वो सारी की सारी अप टू डेट होनी चाहिए। देन कम्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पीपल लाइक पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टीचर्स एंड चाइल्ड हिमसेल्फ बाय डिफरेंट टेक्निक्स। अब आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एंड दैट इंफॉर्मेशन मे बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पीपल। For instance, that information may be collected from parents, that may be collected from friends of that particular student, and it may be collected from subject teachers, and also it may be collected from child himself. ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और जो आप कलेक्ट करने जा रहे हैं, इसको आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप कोई और टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिफरेंट टेक्निक्स शुड बी यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड। जैसे कि हम बात कर रहे थे, इन डिफरेंट टेक्निक्स में साइकोलॉजिकल टेस्ट आ जाते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, इसमें एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आ जाते हैं। इनके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन लेकर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। The teachers in charge of maintaining cumulative records should be given proper orientation and training about how to maintain it. एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि जो टीचर इसको मेंटेन कर रहे होंगे इस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको प्रॉपर पहले से ट्रेन किया जाए कि ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका फ्यूचर यूज़ क्या हो सकता है, एंड व्हाट आर द बेस्ट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर एंड एक्यूरेट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इसके हवाले से प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करना ये भी ज़रूरी है। इन गाइडलाइंस में एक अहम तरीन बात जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स शुड फाइंड अ प्लेस इन इट बट अ सेपरेट फाइल में बी मेड फॉर सच एंट्रीज। एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो इंटरव्यू कर रहे हैं बच्चे से, उसके पेरेंट्स से मालूमात ले रहे हैं, इवन के यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्टर्स अबाउट हिज हेल्थ एंड आल्सो फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट अबाउट हिज बिहेवियर एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। वो किस तरीके से किसी सिचुएशन में बिहेव करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो कि जो कॉन्फिडेंशियल हो, जो सीक्रेट हो। अब इसको आप हिस्सा तो ज़रूर बनाएंगे उस क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का, उस फाइल का, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी होगा कि आप इस कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट मैटर्स वाले जितने भी मामलात हैं, इन सब के लिए अलग से सेपरेट फाइल में इसका रिकॉर्ड रखें, इसकी एंट्री सेपरेट करें ताकि ये कॉन्फिडेंशियल रह सके। द गाइडेंस वर्कर ऑफ द स्कूल शुड बी इन ओवरऑल चार्ज फॉर मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए स्कूल के जो बाकी लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका भी हिस्सा है और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल प्ले करें और इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स मेंटेनेंस शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द प्रिंसिपल और द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। जिस अदारे में
वो बच्चा पढ़ता है और उस बच्चे के हवाले से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं एज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशन आप मेंटेन कर रहे हैं और इसको आप महफूज कर रहे हैं, दैट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द हेड और द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। उस अदारे का जो सरबराह है उसकी सुपरविजन में इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स? इन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? व्हाट विल बी द यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस विद पेरेंट्स अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। आप डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों के पेरेंट्स के साथ, शेयर कर सकते हैं ऑल दैट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट और लर्नर, और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के साथ साथ आप एक डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चे के पेरेंट्स के साथ, ताकि एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके और बच्चे के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की जा सके। Adopting instruction in the classroom, student needs, abilities and interests. क्लासरूम सिचुएशन में बच्चे को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, एंड व्हाट आर द एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ही हैज। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग टू दैट स्टूडेंट, एंड these cumulative records helping students to make important choices or decisions. ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग किस हवाले से हो सकती है? इन द चॉइस ऑफ कोर्सेज, चेंज ऑफ कोर्सेज, चॉइस ऑफ वोकेशनल फील्ड एंड डिसीजन टू लीव स्कूल। कोर्सेज की चॉइस कैसे करनी है आपने, और अगर आप डिफरेंट कोर्सेज में किसी कोर्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और आप क्यों चेंज करना चाहेंगे, आपकी इंटरेस्ट वहाँ है या नहीं है। तो इसके हवाले से भी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के हवाले से ये हेल्पफुल साबित हो सकते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। एंड चॉइस ऑफ वोकेशनल फील्ड, आप किस तरीके से किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कौन सा पेशा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन आप हेल्प कर सकते हैं एक स्टूडेंट की ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड आल्सो रिकॉर्डेड इन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स. Also, you can help student in solving their problems of adjustment in the school, home or society. If the individual having any problem of adjustment in the school or home or society, then you can help in this regard by following that information provided in cumulative records and supplying information to youth employment service regarding students suitability for certain type of jobs. Profession कौन सा चूज करना है, कौन से जॉब्स बेहतर रहेंगे एक इंडिविजुअल के लिए, तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए भी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने हासिल की थी उसके ज़रिए आप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं उस इंडिविजुअल की अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेन्ड इन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स. So my dear students, there are some important questions and activity for you. So you have to search for answers of these questions and to think about it. What is a cumulative record card? Cumulative record card क्या होता है? List the main contents of cumulative record. Cumulative record बनाने के लिए वो कौन से content हैं जो कि ज़रूरी हैं आपको मालूम होने चाहिए. The need to maintain a cumulative record in schools. What is the particular need for maintaining and developing cumulative records in school? What are the uses of cumulative records? इन cumulative records का use क्या है, आप कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. So these are the questions that you have to search the answers of these questions and to think about